Hello everyone. Now we are going to start topic of on micromagnetics, uh, particle size distribution. Okay. So before starting, we will understand why we are using this particle size distribution, why we are studying this particle size distribution, and what the role of particle size in particular pharmacy field. So as we have previously studied that particle size have a significant role in drug absorption, distribution, disintegration. So how it comes like part more the particle size, particle size is more means the disintegration time will be more, it will take more time to disintegrate, dissolution time will be increased, then overall ADME timing will be delayed. So if you want the desired effect, on time effect, whatever formulation you are making, in that case the particle size plays an important role. In case of suspension, the particle size, proper particles, your desired range of particles will decide the sedimentation rate of the suspension, the flocculation and deflocculation of the suspension, the stability and the instability of the suspension. So in pharmacy, in pharmaceutical preparations, particle size has its significant role. Okay, now we will understand how this particle size is determined or calculated in any preparation. Okay, so it can be defined as a powder of spheres, means we are considering the powder particles are either sphere, means almost circular, or equivalent shape particles. Okay, it can be characterized under a single diameter, means like you can understand if some particles are there. Okay, so for particles we are considering a single particle diameter, means the maximum distance which is going to be between the, means this is the diameter of the circle and going through the center of the circle. Okay, this is a, so in spherical particles what is happening, all the particles we are if we are considering that single diameter is there, एक ही diameter है, means सारे particles का diameter एक ही है, सारे particles similar size के हैं, similar diameter के हैं. Okay, दूसरा क्या बोल रहा है, और equivalent diameter means equivalent है. अब equivalent के केस में क्या करते हैं, some particle is there. Okay, अब इसका diameter, मान लीजिए some particle है, अब इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी सिमिलर एज द आइडेंटिकल वन. ओके, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कैसे क्या है. नाउ यूजुअली पाउडर्स कंटेन्स particles with different equivalent diameters. Okay, particles different diameters के होते हैं in large number. Okay, the particle size distribution of a powder के केस में, granular materials in case of granules, or particles dispersed in fluid in a suspension case, is a list of volumes or mathematical functions. Okay, list of volumes or mathematical functions that defines the relative amount of particles present. These particles are again classified by size.
in case of powders, in case of granules, in case of particles dispersed in fluid, their volume, their amount is the amount present is classified by size. Means size वहाँ महत्वपूर्ण है, साइज उसका मेजर करते हैं। तो कैसे करते हैं ये आगे हम देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन मीन्स अगर इसको साइज के बीच में करते हैं, स्फेरिकल है, देन डायमीटर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ मीन्स यू कैन से मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन बोथ द एंड्स। सर्किल का अगर दो छोर माना जाए तो दोनों छोर की दूरी जो मैक्सिमम रहती है वही उसकी साइज मानते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं हम, एवरेज पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं। एवरेज पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला है dn is equal to sigma n into d upon sigma n, where n is number of particles। ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स को बोलते हैं, डिफरेंट डायमीटर्स वाले, इंटू डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, एंड लास्टली जो n है वो क्या कहते हैं, n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसको ये तो आपका जनरल फॉर्मूला होगा एवरेज पार्टिकल साइज का। इसके अलावा सरफेस और भी सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे आपका सरफेस नंबर मीन डायमीटर रिप्रेजेंटेड बाय ds, लेंथ नंबर मीन डायमीटर रिप्रेजेंटेड बाय dl, वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर रिप्रेजेंटेड बाय dvs। नेक्स्ट इज वॉल्यूम weighted mean diameter represented by dw। okay, and in all the cases nd by n is common depending upon what type of calculation they are going to do, d square, d cube and d to the power 4 is given in that। अब हम देखेंगे सरफेस नंबर मीन डायमीटर का फॉर्मूला, ds is equal to अंडर रूट सिग्मा n d स्क्वायर अपॉन सिग्मा n, लेंथ नंबर मीन डायमीटर dl इज इक्वल टू सिग्मा nd अपॉन n सिग्मा n, वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर dvs इज इक्वल टू सिग्मा nd क्यूब अपॉन सिग्मा nd स्क्वायर, देन वॉल्यूम वेट मीन डायमीटर dw इज इक्वल टू sigma n d to the power 4 upon sigma n d to the power cube। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे कि हाउ द कैलकुलेशन इज डन इन केस ऑफ एवरेज डायमीटर कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें अर्थमेटिक मीन्स का एक आता है, अर्थमेटिक मीन डायमीटर का, वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर के लिए। अच्छा, ये सब में क्या करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, उसमें आईपीस स्टेज माइक्रोमीटर और आईपीस माइक्रोमीटर यूज करते हैं, और उससे हम कैलकुलेशन पहले कैलिब्रेट करते हैं, देन हम उसमें से ऑब्जर्व करते हैं ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, और वो किस साइज रेंज में आ रही है वो चीज में नोट करते हैं। तो आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, कैसे, डायमीटर इन माइक्रोमीटर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो पहला क्या बता रहा है, डायमीटर 10, 20, 30, 40, 50 ये डायमीटर्स हैं अलग अलग, और इसमें कितने पार्टिकल्स मिले ये इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, डायमीटर 10 है, 10 डायमीटर के 10 क्या है, 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर के कितने पार्टिकल्स मिले, तो 5 पार्टिकल्स मिले। 20 माइक्रोमीटर कितने पार्टिकल्स मिले, तो 4 पार्टिकल्स मिले। 30 डायमीटर से कितने पार्टिकल्स मिले, तो 3 पार्टिकल्स मिले। 40 डायमीटर के कितने पार्टिकल्स मिले, 40 माइक्रोमीटर डायमीटर के कितने पार्टिकल्स मिले, 2 मिले। और 50 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स कितने मिले, 1। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमको, अब हमको फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला क्या अर्थमेटिक मीन का, DAV इज इक्वल टू सिग्मा ND अपॉन सिग्मा N। अब क्या कर रहा है, सिग्मा ND निकालना है, तो N की वैल्यू और D की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे, यहां से समझिए इसको कैसे कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे आपने टेन इंटू 5 करेंगे, ठीक है। देखिए 10 × 5, ठीक है। 10 × 5 कर दिए, फिर 20 × 4 करेंगे, फिर 30 × 3 करेंगे, फिर 40 × 2 करेंगे, और 50 × 1 करेंगे, ठीक है। अब इसको करने के बाद क्या आएगा, 10 × 5, 10×5 = 50। देखिए यहाँ पे ये 50 आंसर आया है, ये 50 है। देन 20 × 4, 80, ये 80 आ गया। देन 30 × 3, 90, ये 90 आ गया। देन 40 × 2, ठीक है, 40 × 80 आ गया। देन 50 × 1, 50 आ गया। टोटल 350 आंसर आया। दिस इज वैल्यू ऑफ एनडी, सिग्मा एनडी, ओके। अब क्या आ रहा है इसमें, अब पूछ रहा है कि हमको दो चीज निकालनी है, एक तो एनडी के लिए और दूसरा एन के लिए। एन क्या यहाँ पे बता रहा है, एन इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे पास टोटल नंबर कहाँ है, ये सारे को ऐड करेंगे, जितने हैं ये, इनका ये टोटल आएगा। तो 5 और 3, 4, 5, 10 और 5, 15, टोटल 15 पार्ट। ये अब देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया ये 15, ओके। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूले में डालेंगे कितना होगा, 350/15, ये कैलकुलेशन में आएगा। और लास्टली आपको जो कैलकुलेशन में मिलेगा अमाउंट, वो कितना रहेगा, वो रहेगा 23.33 माइक्रोमीटर, ओके। इस तरह से आपका ये एवरेज अर्थमेटिक मीन डायमीटर आ गया, वो कितना, 23.33 माइक्रोमीटर, ठीक है। सेम वे में आप वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर का निकालेंगे, अगेन जिसका फॉर्मूला क्या है, डीवी इज इक्वल टू सिग्मा एन डी क्यूब अपॉन सिग्मा एन डी स्क्वायर, ओके। अब इसमें क्या लिखा है, डायमीटर, और ये देखिए आपको गिवन फैक्टर क्या रहेगा, आपको गिवन फैक्टर रहेगा, आपका जो गिवन फैक्टर रहेगा वो रहेगा सिर्फ इतना कि डायमीटर कितना था और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, ठीक है। अब हमको करना क्या क्या है, तो समझिएगा इसको, क्या क्या करना है हमें। हमें इसमें इसकी किसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसमें डी क्यूब की वैल्यू चाहिए, हमें इसमें डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। फिर हमको ओवरऑल एन डी क्यूब और एन डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक सिंपल फॉर्मूला आप याद रखिए, जब भी किसी की स्क्वायर की बात करते हैं, मीन्स अगर 10 स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 10। 10 की क्यूब की बात करेंगे मीन्स 10⁻, तो देखिए समझिए इसको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया 10 का स्क्वायर मीन्स 10 × 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो ये 10 का स्क्वायर का हो गया। अब कह रहा है 10 क्यूब, 10 × 10 × 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000, ठीक। तो ये पहला वाला आपका जो है ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। और ये दूसरा वाला क्या है, ये है 10 का क्यूब, ठीक है। इसकी ये वैल्यू हो जाएगी।
इसी तरह से आपके सारे के सारे आपको निकालने हैं, ठीक है। अब कैसे इसको समझिएगा कैसे ये हो रहा है। ये कैलकुलेशन इजी है, आप इजीली समझ सकते हो। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। पहले आपको निकालना है डी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर किसके लिए? डी स्क्वायर आपका इस वैल्यू के लिए हम डी स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको ये डी स्क्वायर चाहिए, ठीक। अब डी स्क्वायर के लिए क्या कर रहा है? डी का स्क्वायर कर रहा है। 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 10 100। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400, ठीक है। फिर 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 9 900। देन 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 4 4 जा 16 1600। देन 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25। तो सॉरी 50 इंटू 50 में आप 5 5 25 करेंगे 2500, ओके। तो ये आपका हो गया डी स्क्वायर का, ठीक है। अब सेम वे में आप डी क्यूब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डी क्यूब कैसे? 10 इंटू 10 इंटू 10 आपका क्यूब है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 20 इंटू 20 इंटू 20 8000, 30 इंटू 30 इंटू 30 27,000, 40 इंटू 40 इंटू 40 64,000, 50 इंटू 50 इंटू 50 1,25,000, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन पार्ट था फॉर डी क्यूब। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपका क्या है? आपको अब एन डी स्क्वायर और एन डी क्यूब की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। पहले आप देखेंगे एन डी स्क्वायर क्या किए, एन इंटू डी स्क्वायर। तो पहला क्या आपका एन की वैल्यू है, ठीक है। तो एन इंटू डी करेंगे तो 5। यह क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारी जितनी आपकी वैल्यूज आ रही हैं सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे आएगा, क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 इंटू 10 500, 4 इंटू सॉरी 5 इंटू 100 500, 4 इंटू 400 1600, 3 इंटू 900 2700, 2 इंटू 1600 200, 1 इंटू 2500 इज इक्वल टू 2500। इससे आपकी एन डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक। अब सेम वे में आप क्या करेंगे, एन डी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा समझिए इसको। एन डी क्यूब के लिए निकाल रहे हैं। एन डी क्यूब मतलब 5 इंटू 1000 5000, 4 इंटू 8000 32,000, 3 इंटू 27,000 81,000, 2 इंटू 64,000 1,28,000 एंड 1 इंटू 25,000 इज 25,000, ठीक है। अब इसका हम ग्रैंड टोटल करेंगे, कैसे कैसे? एनडी सिग्मा एनडी क्यूब चाहिए तो इसके लिए इसका टोटल करेंगे तो आपको कितना आएगा 3,71,000। और सिग्मा एनडी स्क्वायर के लिए करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी, ये कितना आएगी 10,500। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एनडी क्यूब अपॉन सिग्मा एनडी स्क्वायर, ठीक है। एनडी क्यूब की वैल्यू कितनी आई 3,71,000 और नीचे 10,500 और इसको जब इक्वेशन में पुट करते हैं कितना आया 35.33 विच इज अगेन इक्विवेलेंट टू 35 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई 35 माइक्रोमीटर। तो द आंसर विल बी द वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर ऑफ अ गिवन डेटा वाज 35 माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पर 35 माइक्रोमीटर की आ गई। अब इसमें अगला क्या पूछता है,
अगला है कैलकुलेट द जियोमेट्रिक मीन डायमीटर फॉर द गिवन डेटा। जियोमेट्रिक मीन डायमीटर निकालना है इसमें, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है देखिएगा, लॉग डी जीईओ, जीओ में जियोमेट्रिक के लिए यूज करते हैं, लॉग डी जीईओ इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल ब्रैकेट एन लॉग डी अपॉन सिग्मा एन, ठीक है। अब इसमें आपको जो लॉग दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो लॉग दिख रहा है आपको, ये जो आपको लॉग दिख रहा है, ये जब आप लास्ट में जब कैलकुलेशन करते समय जब बाद में इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आने पे वो क्या होगा, लॉग से एंटी लॉग कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसका कैलकुलेशन। देखिए अभी तक आपको इंडिविजुअल बताया जा रहा था, अब यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है इन रेंज, ठीक है। साइज माइक्रोमीटर में रेंज में दी है 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, क्या साइज रेंज दिया है, बैंड दिया है। इसमें आपको कैटेगराइज करना है कि आपका कौन सा पार्टिकल किस साइज रेंज में आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने कैसे देखे, माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप से देखे यूजिंग स्टेज माइक्रोमीटर, ठीक है। अब उसमें आप क्या कर रहा है कि आपके 1 से 3 जो माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज रेंज है, कितने पार्टिकल्स मिले 15, 4 to 6 रेंज के कितने मिले 50, 7 to 9 के कितने मिले 35 और 10 to 12 के कितने मिले 5 पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपके साइज रेंज थे। अब इसमें कैलकुलेशन करना है हमको, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा गिवन फैक्टर क्या क्या है पहले हमको वो देखना है, ठीक है। व्हाट इज द गिवन फैक्टर वी नो अबाउट, तो पहले इसमें देखिए क्या क्या है, देखिए इसमें जो है ये वाला पार्ट देखिए, ये आपका गिवन फैक्टर कौन कौन सा है, साइज माइक्रोमीटर में, और आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ था, ये आपको गिवन था, ठीक है। अब आप साइज में से मीन साइज निकालेंगे, ठीक है, तो दोनों का एवरेज, मीन कैसे निकालते हैं, टोटल बाई 2 कर देते हैं, तो 1 + 3 4 अपॉन 2 कर देंगे, कितना आएगा 2 आया, 4 और 5, 4 और 6, 4 6 10, 10/2 5, 7 to 9, 7 + 9 16, 16 का हाफ 8, 10 to 12 कितना आएगा 22, 22 को आधा 11। ये आपके मीन साइज डायमीटर मिल गया, ठीक है। अब मीन साइज डायमीटर मिलने के बाद में अब आपका नेक्स्ट क्या कर रहा है, आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लॉग डी निकालना है, ठीक है। अब लॉग डी के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फार्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब फार्मूला निकालने के लिए क्या करना है, उसमें आपको लॉग डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो लॉग डी मीन्स ये जो आपकी मीन डायमीटर आई डी की वैल्यू, ये आपका इसी का लॉग निकालेंगे, तो मीन्स लॉग डी की जगह पे क्या कहेंगे log 2, तो 2 लॉग के लिए क्या आता है, 2 लॉग के लिए आता है वैल्यू 0.3010, ठीक है। log 5 के लिए वैल्यू क्या आता है 0.6989, ठीक है। log 8 के लिए क्या आता है 0.9030 एंड log 11 का क्या आता है 1.0413, ये लॉग की वैल्यू है। अब लॉग की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद क्या करना है हमको, एन लॉग डी निकालना है। लॉग डी की वैल्यू मिल गई, अब एन से उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये आपका ये एन की वैल्यू है एन इंटू लॉग डी। क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
क्या वैल्यू आएगी, देखिए 15 इंटू क्या रहा है, 15 इंटू 0.3010, वैल्यू क्या आएगी, ये 4.515। फिर क्या आया, 50 इंटू 0.6989, वैल्यू कितनी आएगी, 34.945। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है 35 इंटू 0.9030, कितनी वैल्यू आई, 33.605। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 5 इंटू 1.0413, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई, 5.2065, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये n log d की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, सिग्मा एन डी n log d की और सिग्मा n निकालेंगे। तो ये देखिए इसकी वैल्यू टोटल करने के बाद क्या आई, ये आया 105, और इसकी वैल्यू टोटल करने के बाद क्या आई, 76.272, ठीक है। अब इसको हम फार्मूले के हिसाब से करेंगे। ये वैल्यू फार्मूले में डालने पे क्या हुआ, 76.272 अपॉन 105 इज इक्वल टू 0.7264, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डायमीटर DGO इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब देखिए यहाँ पे लॉग, यहाँ पे देखिए लॉग DGO किए थे तो सिग्मा एंटी था, लॉग DGO यहाँ भी किए तो पॉइंट क्या आया, 0.7264, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, लॉग को हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो लॉग से क्या हो गया, एंटी लॉग चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या किया, एंटी लॉग 0.7264, अब एंटी लॉग 0.7264 का जो वैल्यू निकाले तो कितना आया, 5.32, ठीक है। तो 5.32 इज द इन माइक्रोमीटर, ठीक है। साइज है, साइज हमेशा यहाँ पे माइक्रोमीटर में ऐड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट था किसका, कैलकुलेशन पार्ट था। इसी तरह से आपको कोई भी फार्मूला पूछेगा उसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम वे में आप प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल में भी सारे कैलकुलेशन काम आते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, नंबर एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू।